جی مسیحا کے قدرت برے نام میں آپ سب کو سلام۔ ابھی خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے، سو ہم پہلی تلاوت کو دو زبانوں میں سنیں گے، اردو میں اور پنجابی میں۔ سو حوالہ نوٹ فرما لیجیے جو دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ۔ پہلا سلاطین یا سلاطین کی پہلی کتاب، باب نمبر 10 اور آیت نمبر 1 سے 13۔ First Kings chapter 10 verses from 1 to 30 if somebody or anybody wants to read in English as well. And the young people normally do that. So First Kings chapter 10 verses from 1 to 30. سلاطین دی پہلی کتاب باب نمبر 10 1 سے 13 میں پہلے اردو میں تلاوت کے لیے سیمبل استعمال کروں گا اور سامنے کھیلتا ہے اور آپ کے کلام کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں۔ پہلا سلاطین خدا کے کلام میں سے آج پہلے سلاطین کی 10ویں باب کی پہلی 13 آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوں کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالہ اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائے۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور ان کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور اس کی سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی تھی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہے تیرے لوگ اور خوش نصیب ہے تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہے جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھائے، کیونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل و انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا ہے۔ اور جب اس نے بادشاہ کو 120 کنتار سونا اور مسالہ کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالہ سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے، ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ یہ ہیرام کا بیڑا ہے جو اوفیر سے سونا لاتا ہے، بڑی کثرت سے چندن کی درخت کی بیش بہا جواہر اوفیر سے لایا۔ اور سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ خدا کے کلام سے پڑھے اور سنے جائے گا۔ جی تھینک یو سیم بھائی۔ ہم اپنے چرچ میں نارملی 2 زبانوں میں تلاوت کرتے ہیں، اسی حوالے کو ہمارے پیارے بھائی منی کمار آئیں گے اور پنجابی میں پڑھنے کی برکت حاصل کریں۔
ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 10 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਊਠ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਿੱਠਾ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਧੁੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 120 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹਿਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੀਰਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਹਿਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਲਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਲਈ ਬਰਬਤਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ प्रभु यीशु मसीह की बरकत हो। आमीन। जी बहुत शुक्रिया मनी भाई। अभी हम चंद आयात ओनली थोड़ी सी आयात जो है वो अहद ताज़ा में से भी नए अहदनामा से भी पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें मत्ती की इंजील निकाल लीजिए, चंद आयतें मैं वहाँ से पढ़ के इसको फिर हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे। मत्ती की इंजील बाब नंबर 12 और आयत नंबर 38 से 42 तक पढ़ेंगे। Gospel of Matthew chapter 12 verses from 38 to 42। और बड़ी ज़रूरी आयात है, मैं इनको पढ़ने की बरकत हासिल करता हूँ। आप इन आयात मुबारक पे गौर कीजिए और इनको सुनने की बरकत हासिल कीजिए। जी खुदा का कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 38 से 42 तक। इस पर बास फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उसे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा और कोई निशान उनको न दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा,
वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहे। नीनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराए, क्योंकि उन्होंने यूना की मुरादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दखन की मलिका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरिम ठहराए, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कलाम एक इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी ढेरों ढेर पर काम आ सकता है। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदाया हम तेरे सामने आते हैं, हम तेरे कलाम की शिनवा हुआ चाहते हैं। खुदा हम अपने दिल खोलते हैं, अपने कलाम की सच्ची बातों को हम तलाश कर खुदा मैं अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ। हेल्प मी लॉर्ड टू proclaim your truth to the people, to expose your word to your people. खुदा मेरी बात फरमा। मैं अपनी कमजोरी का इज़हार करता हूँ, लेकिन खुदा मैं जानता हूँ कि तू हमारी कमजोरी को अपने फजल के तुफैल अपने जोर में बदलता है। एक एक जान रूह पर जिस कलाम को सुने उनसे पर बड़ी बरकत है। मसीहा के कुदरत बरे नाम के वसीला से। दो हवाले पढ़ेंगे नहीं, अब हम इस पे बात करेंगे। मैंने सुन रखा है, अगर शायद दुरुस्त ना तो मुझे बताइएगा। कहते हैं कि हम जो कुछ भी कहते हैं और जो भी सुनते हैं, ये सदाएं, ये आवाजें, ये मुकालमे फिजा में मौजूद रहते हैं, कभी मुकते नहीं। जो कुछ भी आज तक के आप सुने हैं सब कुछ फिजा में महफूज है। साइंस ने तो तक भी दावा करती है कि एक वक्त आएगा हम ऐसा कोई आला बना लेंगे, ऐसी कोई डिवाइस बना लेंगे कि जितनी आवाजें आज तक इस कायनात इस दुनिया में सुनी है हम उन सब बातों को रिवाइंड करके सुन सकते हैं। तो मैं गौर कर रहा, अगर ये हो जाए, कोई ऐसी मशीन बन जाए, कोई ऐसा गैजेट बन जाए, कि ऐसा आला बन जाए जो इन सारी आवाजों को इकट्ठा कर ले और हम उनको सुने, तो एक बात तो तय है भाई, बड़ी अच्छी बात, बड़ा कमाल मौजा होगा, ये बड़ी बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। हम सदियों की पुरानी सदाओं को, आवाजों को, मुकालमों को, बातों को सुन सकेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था साथ साथ कि हो सकता है हम थोड़ी देर बाद थोड़े बोर होना शुरू हो जाए। उसकी वजह है भाई, दुनिया में जितने इंसान आए हैं सब ने एक तरह की बातें की है ना भाई। कोई बीवी की करेगा, कोई शोहर की करेगा, कोई कपड़ों की करेगा, कोई बच्चों की करेगा, कोई पार्टी की करेगा, कोई जंगों की करेगा, कोई अफवाहों की करेगा, कोई टेक्नोलॉजी। ये बातें होती दुनिया में क्या बात है, हम सारी एक जैसी बातें करते हैं भाई, रला मिला के, कोई डिफरेंट बात नहीं है। तो हो सकता है बड़ा मोनोटोनस लगे कि सभी दुनिया गल्ला सारे करते हैं भाई, है ना। देखिए मैं आज आपकी बड़ी मजे की बात, इस कायनात की हस्ती, इस कायनात की तारीख में, इस दुनिया की तारीख में एक ऐसा शख्स हो गुजरा है कि उसने जो कहा है वो किसी और नहीं, उसके मुकाबले सबसे जुदा है, उसकी बातें सब तो वक्री हैं, उनके स्टेटमेंट एडिया प्रोवोकेटिव ने कि आज भी जब हम उसे सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान कैसे ये कह सकता है। तो दुनिया में सारे मुकाबले एक दूसरे से मिलेंगे, एक बंदे ने मुंह से निकलने वाले कलमे किसी और को नहीं मिल सकते। उसकी वजह क्या है, वो कोई और कह ही नहीं सकता, वो सिर्फ उसकी जात का खासा है, वो सिर्फ उसी जात का कमाल है, वो एक गल कर सकता है। मुझे एक बात बताइए, यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 58 आयत में एक बंदे ने, एक शख्स ने, एक शख्सियत ने एक गल की थी, ध्यान ना सुनना, कोई उसकी गल कर सकता नहीं कर सकता, पता नहीं क्या। इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, अब्राहम था मैं हूं, जनाब मसीह ने कहा, परमेश्वर ने किया। अब्राहम ईमानदार का बाप, उसे तो पहला भी मैं मौजूद था, और को कह नहीं सकता। ये मुकालमा कल्ला निकल के ज्यादा हो जाएगा। इंजदा मुकालमा किसी कभी बोलिया नहीं, इंज की गल कभी किसी की थी नहीं। और यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 30वीं आयत अगर आप देखें, वहां हमने एक बड़ी कमाल बात हुई, वो भी किसी हद तक लिखी थी। क्या
میں اور باپ ایک ہیں. اور باپ کی جگہ تو خدا لاؤ. باپ خدا کو کہتے ہیں یسوع مسیحا پرمیشور جیزس عیسیٰ مسیح یہاں پر کہتے ہیں میں اور باپ آئی اینڈ فادر آر ون. اینی وقت اینی کمال اسٹیٹمنٹ دنیا میں آج تک کسی اور نے نہیں دی. تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی نئی آیت دیکھیں وہاں پر جو بات کی ہے کسی نے کی کہتا ہے جس نے مینوں ویکھیا اس نے باپ کو دیکھا اور جس نے مینوں ویکھیا تے رب ویکھ لیا. یہ دعویٰ کوئی کہہ نہیں سکتا. Nobody can say who has seen me has seen the Father. کوئی کہہ سکتا Nobody. انگلش اسٹیٹمنٹ دنیا دے کوئی اور بندہ نہیں کہہ سکتا. پھر یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 6 آیت میں یسوع کیا کہتے ہیں راہ حق اور زندگی میں I am the way the truth and the life. یہ بھی گل کسی آیت نہیں لیتی. اور راہ بھی میں ہاں حق بھی میں ہاں سچ بھی میں ہاں تے زندگی بھی میں. ایک کلمہ بھی کسی اور نے کیا. اگر کوئی مشین بن جائے تو یہ کلمہ تے اور کبھی کسی نے کہی. ایسے کمال اسٹیٹمنٹ ہیں جو اس کے زبان مبارک سے. پھر یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 35 آیت تک پڑھی کہتا زندگی کی روٹی میں ہاں. زندگی کی روٹی میں ہوں جڑا میرے کو آ جاوے whoever comes unto me will never ever hunger. اور وہ کھچ نہیں لگی اور نہ پھر وہ کبھی پیاسے ہوئے. اور جو اس سے پہلے آیت پڑھی کہ جو کس نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں آ کہ کوئی باپ کے پاس میرے سوا نہیں جا سکتا. یہ بھی گل نہیں لگی. یہ بڑی کمال اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ کس نے کہی؟ پرمیشور نے کہی, جیزس نے کہی, یسوع نے کہی, عیسیٰ مسیح نے کہی. اور کیوں کہی؟ کسی فلم کے ڈائلاگز نہیں تھے. وہ کیوں کہتے تھے یہ باتیں؟ اور سن لو جان لو کہ میں کون ہوں. ایک ہی مقصد تھا, میں یہ کہہ اس لیے ہوں کہ جان لو سمجھ لو کہ میں کون ہوں. لیکن کلام میں ابھی ہم نے حوالہ پڑھا کہ اس نسل کے زناکار برے لوگ نشانی چاہتے تھے. نشان 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 موت سے بحاظ آنا. انہوں نے کہا میرا کلام سن کے منو کہ میں مسیح ہوں. پھر اس نے کہا تو کوئی نشانی نہیں ملے گا. یہاں پر اس نے یہ بات کی کوئی نشانی نہیں جائے. انہوں نے کہا یونا کے سوا کوئی نشان نہیں دیا جائے گا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہوں گا. ابو کا لاپی صاحب کٹو, وہ 3 دن اندر ہی رہا, 3 دن باہر آ گیا. میں بھی یونا کی طرح باہر نکلا. وہ نشانی تو پھر دی, لوگوں نے مانی. کوئی عیسیٰ یسوع کو جیزس کو اپنے طریقے اس نے کہا باپ اور میں ایک ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں, راہ حق و زندگی میں ہوں. کوئی باپ کے پاس میرے وسیلے ہوئے نہیں جا سکتا. میں زندگی کی روٹی ہوں. جڑا منہ کھا لے اور بھوکا نہیں رہے گا. انہوں پیاس نہیں لگی. یہ باتیں پتہ منہ جانو بندے کہ نہیں اسی جگہ. اس نے کہا نشانی نشانی میرا کلام سن, میری باتیں سن. نہیں مانے. وہاں پر مسیح نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جو میں اپنے سامنے بیان کر رہا ہوں اور یہی میرے سرمن کا آج ٹاپک ہے. مسیحا نے کہا نینوا کے لوگ. اچھا معذرت کے ساتھ لفظ نینوا پڑھنا چاہیے, نینوا بھی پڑھنا تو میرا خیال میں پڑھنا نہیں ہے. لیکن صحیح اگر درستی سے آپ کسی تلفظ کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو لفظ نینوا ہے. اور اس پہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی. میں نے صبح عبرانی بھی چیک کی, اس میں بھی 99 لفظ ہے. اور اردو کی کتاب بائبل میں نون کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے. پنجابی بھی پڑھی گئی, اس میں 99 ہے. ہندی میں نے دیکھا 99 ہے. کورین تو میں نے چیک کیا 99 ہے. تو اس لیے آپ تسلی کے ساتھ 99 کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ نہ کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ جو بھی کہنا چاہیں. لیکن درست طرف نہیں پائے. تو آگے چلتے 99 کے لوگوں نے, میں نے اس لیے بتایا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہتے ہیں پادری صاحب غلط ہو رہے ہیں. میں نے چیک کیا تو 99 کے لوگ کیا کرتے. اس نے کہا 99 کے لوگ کھڑے ہو کے تم پہ الزام لگائیں گے, اوے بیوقوفو, اور ہم نے یونا کو سن کے توبہ کر لی. تم نے جو یونا کا بھی کنگ آیا ہوا تمہارے درمیان, جو رب کا سخن اترا ہوا تمہارے درمیان, جو مسیحا ہے تمہارے درمیان, تم نے اس کو سن کے توبہ کی. پھر اس نے ایک اور مثال دی. کہنے لگا دکھن دی ملکہ, آج کا موجودہ ایتھیوپیا سے اتنا
के बादशाह की हिकमत सुनने आई। और लिखा है, अभी उर्दू में आपने पढ़ा भाई, कि उसने जब उसकी हिकमत देखी, उसकी शान देखी, पता कितनी है? कहता उसके होश उड़ गए। होश पता कितने उड़ गए? पंजाबी में कहता है वो बड़े डर करता एंड नहीं लगा था, परेशान जा हो जाता है कि की क्या लबेना, बड़े डर करता, हैरान रह जाना, टू बी टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, हैरान। उर्दू में अकेली होगा, कहते उसके होश उड़ गए कि क्या इसके नौकरों की निशिस्तो बर्खास्त कैसी, यानी बंदे किस तरह ने, एक खलुंदे किस तरह ने, कैसी सीढ़ियां बनी हुई हैं, खुदा के घर तक जो सीढ़ियां बनी हुई कितनी खूबसूरत है, जो पत्थर लगा है, जो चंदन की लकड़ी के मामले सारे फरोगिट में लेके, लेकिन उसके अपने महल में भी बहुत कुछ कीमती लगा हुआ था। लिखा है कि वो हैरान है, उसने कहा मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था। Oh, he is a great man. I have never ever seen a man, a king in my life who has this much magnificence. इतना बड़ा बंदा है, इतनी जलालत है, इतनी ग्लोरी। तो यीशु ने पता क्या कहते, दक्षिण दी मलका भी खलो के तड़के इल्जाम लाई। ठीक है, मैं हैरान रह गई थी, लेकिन जो तुम्हारे दरमियान खड़ा है, क्या मसीह ने कहा वो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान से भी बड़ा है, यही टॉपिक है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो सुलेमान से भी बड़ा है। कैसे? अब देखिए, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो यीशु मसीह को कहते हैं दुनिया की कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है, ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कहते कि हमें कहना है, इसलिए कहते हैं कि उसको देख के कहना पड़ता है कि सुलेमान भी खुदावंद की जलालत के सामने हीच है, खुदावंद की हिकमत के सामने हीच है, खुदावंद के तौर तरीकों के सामने हीच है। थोड़ी सी बातें मैं करना चाहता हूं। लिखा है जब उसने सुलेमान की दौलत देखी तो वो हैरान हो गई, इतनी दौलत। वो सुनती थी, जहाज गुजरते थे उसके मुल्क के पास से, तो वो लोग उसको कहानियां बताते थे, वह किधर जहाज जा रहे ने, इतना माल लदिया है, तो बता दें ये सुलेमान के जहाज जा रहे हैं। इतना मालदार शख्स, इतनी दौलत, हीरे, बहुल्य पत्थर, ओह ठीक हो गए, कीमती पत्थर, कीमती हमें, ये सारा कुछ उसके घर में। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, वो कैसे? सुलेमान कभी भी यीशु से बड़ा नहीं हो सकता। मैं अभी आपको स्टोरी सुनाता हूं, बड़ी मजे नहीं। वो 10 किलो गोश्त खरीद सकता है, बैल, मेंढे, बर्रे, बकरे खरीद सकता है, लेकिन 5 रोटियां तो 2 मछलियां जाएगी, उनसे हजारों को रजा नहीं सकता। कौन अमीर है? वो खरीद सकता है, बना नहीं सकता, रजा नहीं सकता। यीशु मसीह किसी भी चीज से भुखिया नूं रजा सकते हैं, उन्होंने लोग अबारत से वो कभी भी अगे बढ़ नहीं सकता। सुलेमान जो चाहता खरीद सकता था, इसमें कोई शक नहीं, वो जो चाहता था खरीद सकता था। लेकिन यीशु का कमाल देखो, उसने कहा भाई तुझे कुछ भी खरीदना है बाहर जाना है, रोटी खरीदनी है बाहर जाना है, नौकरों को भेजना है, पैसे लगाने हैं। हम नेहर में देखते हैं यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो, चलो आइए, मैं बन गया, दे दो। उस जैसी इमारत कहीं नहीं नजर आई। वो चीजों का मालिक है, खजानों का मालिक है, जमीन देवते हर एक नेमत का मालिक है। और हम देखते हैं उसके तख्त की बड़ी बात होती है जी, बड़ा शानदार आला तख्त था, ठीक है, बंदों ने बनाया था, बंदे उठा के रखते थे, बंदे मौजूद रहते थे। पर यीशु परमेश्वर के तख्त के बारे के लिए है, हमें पता ही के लिए है, उठे अरबा खरबा फरिश्ते उसकी बंदगी कर दे, और ना उसकी सल्तनत को कोई जवाल है। आज सुलेमान का तख्त मौजूद नहीं है, कोई उठे बादशाह का ऐलान करने वाला कोई नहीं। यीशु की बादशाही आज भी कायम है, आज भी चल रही है, आज भी करोड़ों लोग दुनिया पे यीशु से इश्क करने वाले, प्यार करने वाले मौजूद हैं। उसकी बादशाही का कोई इख्तिताम नहीं है। दुनिया में जितने बादशाह हम लिखते हैं ऐसे आया ऐसे भी बादशाह को दे, यीशु के बारे में लिखा है ऐसे बादशाही की थी, उतने टोल के फिर आ रही, ही इज इटर्नल किंग,
सॉवरेन किंग, उसकी बादशाही को कोई भी जवाल नहीं। फिर उसने सुना कि जनाब अली उन्हें बड़ा बड़ा महल बनाया, बड़े कीमती पत्थर और बड़े कीमतियां लकड़ियां लाइया ने और उन्होंने कमाल कर देता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या क्या रखा है? ठीक है, सुलेमान ने बड़ा कुछ बनाया, मैं नहीं जा रही थोड़े लिए आसमान पे की करने लगा, घर बनाने लगा, मैंशन बनाने लगा, जिथे गलियां की केड़ियां ने सोने दी, आजकल जमीन पर किसी ने सोने की गलियां नहीं देखी, वो जवाहर लगे हुए हैं, सोने की गलियां हैं, कोई चीज खरीदनी नहीं पैनी, बिजली का बिल देना नहीं पैना, एवरीथिंग इज फ्री। और सबसे बढ़ के कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं। और सुलेमान को भी गार्ड रखने पड़ते थे अपने साथ, यीशु के ऊपर कोई जो मेरी सल्तनत है तो अमीर कौन है? यीशु मसीह। मेरे पास ऐसी सल्तनत है उसको जवाल नहीं है, वहां पर कोई मरेगा नहीं, वहां पर कोई परेशान नहीं होगा। सुलेमान को अपने मुलाजमों को भेजने के लिए, मुलाजमों को तनख्वाह देता होगा ना, तनख्वाह तो देता ही होगा, उनको तो नौकरी के सैलरी तो देनी पड़ती है ना। यीशु मसीह ने कहा अपनी सैलरी सुनो जेड़े मेरे को आगे में थोड़ी तनख्वाह की है, अमेजिंग। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देता हूँ, मैं तुम्हें पाकीज़गी देता हूँ, कुदूसियत देता हूँ, अपनी जिंदगी दे देना। अयो तो रुपये लेता सी, रुपये हो गए, रिटायरमेंट के पैसे वो भी खत्म हो गए, अगों पति भी जितने मर्जी कमा लें यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ना कोई अपनी जिंदगी दे सकता है, ना कोई मौत दे सकता है, ना कोई हमें पाक कर सकता है। इसीलिए तो और यीशु मसीह का कमाल है। मेरे ख्याल से सुलेमान की वजह से किस तरह भी हो, किसी को बादशाह को अपना बाप कहने का कोई हक नहीं जाता। तो यीशु मसीह की इमारत का कमाल देखिए, कैसी इमारत है। जो भी पास गया उन्होंने उम्मीद करता आज कायनात का खालिक, मालिक, बनाने वाला, चलाने वाला, सस्टेन करने वाला साडा की बनेगा जी, अब्बा बन गया है, फादर बन गया है, बाप बन गया है। करोड़ों क्रिश्चियन हर रोज दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हेवनली फादर। एडी बड़ी बात, इसलिए कहा सुलेमान से भी बड़ा है यहाँ पर तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि सुलेमान के पास इतनी हिम्मत थी कि वो बारिशों को रोक ले, बादलों को रोक ले, तूफानों को रोक ले। पर यीशु मसीह का हमने देखा है, कश्ती में बैठे थे, बल्कि सोए थे, उड़े, तूफान आ गया, कहा थम जा, उसके बाद तूफान के चलन का वाक्य कोई नहीं, तूफान थम गया। ये यीशु मसीह की इबादत का मामला है। फिर हमने देखा कि सुलेमान की एक और चीज से बड़ी मुतासर थी मलेका। वो कहते थे उसके पास भाई इल्म कमाल है, बड़ा ही अक्ल आदमी, नॉलेजेबल है। मैंने बड़ी पहेलियां पूछी, हर पहेली का जवाब इन्हें मनु देता है कि जे मेरे जो माड़ा जो बंदा सुलेमान के सामने खलोता होंदा ते मैं एक पहेली पूछ लेंदा, सुलेमान बादशाह मेरे सिर ते वाल के दे। उन्हें मनु की कहना सी जी इस बंदे को फांसी लगा दी जाएगी, वो सौ कुछ नहीं पता। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं हमने तुम्हारे बाल गिने हुए, मुझे तुम्हारे दिल की धड़कनों का अंदाजा है। इससे बाल आगे भी बढ़ के सुन लें। उसने कहा तुसी की सोच रहे, आई नो तुम्हारे ख्यालात को मैं जानता हूं, तुम्हारी ट्रैफिक ऑफ थॉट्स किस तरह जा रही है ये भी मैं जानता हूं। एम नहीं किया उसने, जो तुम्हारे दरमियान है वो सुलेमान से भी बड़ा है, ग्रेटर देन सोलोमन। और फिर हम देखते हैं कि क्वीन एक और बात से बड़ी हैरान हुई थी, वो ये थी कि उसने खुदा का घर बनाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त कमाल घर बनाया है, बहुत बड़ा घर बनाया है, जिंदा खुदा की बात करता है, फाइन अमेजिंग। और सुलेमान उसमें बहुत, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। खुदा को उसने पहला दर्जा दिया था, लेकिन जब उसे यीशु मसीह से कंपेयर करेंगे, यीशु मसीह से मिलाएंगे, तो आप कहेंगे कि वो सुलेमान से बड़ा है। और सुलेमान द नबी की करता सी, रब दे घर जानदा सी, यीशु मसीह घर बन के जमीन पर उतर आया। वो रब का घर था, वो खुद रब था, उसके अंदर रब बसा हुआ था। और अब जिस घर में, जिस दिल में यीशु चला जाए, वो भी बन जाता रब दा घर बन जाता है। ये एजाज उन्होंने हासिल नहीं सी जो वहां पर मौजूद थे, वो यकीनन उसने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन यीशु मसीह ने कमाल कर दिया, घर ही जमीन पर उतर आया, जिंदगी ही जमीन पर उतर आई, अपनी जिंदगी ही जमीन पर उतर आई। पीस देने के लिए नहीं कहते मैं पीस ही बन गया, जिंदगी नहीं, मैं जिंदगी देने नहीं, मैं जिंदगी बन के आया हूँ। जो मुझे कबूल कर लेगा उसे जिंदगी मिल जाएगी। और फिर खुदा अक्ल कमाल ये किया है कि हमें और हमारे दरमियान, रब के दरमियान जो जुदाई थी, उस जुदाई को भी उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है।
एक और बड़ी मजे की बात है, लिखा है खुदा के कलाम में, जब उसने देखा तो कह लगी कि सुलेमान दे कोल ते बहुत कुछ है, ये तो सारिया चीज़ों का खालिक ते मालिक है, महल दे बार सारा जमीन दिए, जंगलात दे हुक्म इहदा चलदा है। पर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, आसमान बयान कर दे रब दे काम सारे, यीशु का आसमान में कहता वो बादलों को रथ बना लेता है। बिल्कुल बादल उसके लिए क्या बन जाते हैं, अंदाज। दैट इज अमेजिंग लॉर्ड वी हैव। और हम कह सकते हैं कि वो सुलेमान से बहुत ज्यादा बड़ा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु जी नूं रजा दिंदा है सच्चा तौर पे, सुच्चे तौर पे अंदरों रज जाता है, सच्ची तरह रज जाता है, पक्की तरह रज जाता है, वो फिर भूखा नहीं होता। और फिर एक और उसने बात की कि भाई ने तो सब मुहैया करता सुलेमान, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन थी उसके प्रोविजन में। यीशु के पास लिमिटेशन नहीं है, लिखा है वो हमें देता है, पहली गल। दूसरी गल क्या है, इफरात से देता है, अबंडेंटली देता है कि तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का काम है, वो हमें देता रहता है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, वो अपने लोगों पर करम रहम मेहरबानी बहुत ज्यादा करता है। और जब उसने देखा कह लगी इन्हें मुलाजिम बड़े वफादार हैं, बड़े वफादार मुलाजिम। मैं इस पर एक बात करना चाहूँ, आई होप यू विल लाइक इट। आज यीशु के खातमों को भी देखा जाए जो सच्चे सुच्चे दिल के साथ उससे प्यार करते हैं, तो लोग तारीफ कर उठते हैं कि ये रब दे बंदे अपने खुदावंद दा प्यार कर दे, इसलिए अपनी जान देने के तैयार हैं, इश्क की हद तक प्यार करते हैं। मुझे पता है ये बात जो मैं कर रहा हूँ हो सकता है बहुत से सोच रहे हो तो भाई जी थोड़ी थोड़ी लफ्ज़ जरूर नहीं है नहीं, और तादाद बढ़ती चली जाएगी। आप जो यहाँ पर बैठे हैं आप एम नहीं बैठे, और जो मुझे सुन रहे हैं फेसबुक पर एम नहीं सुन रहे, हम रब से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत ने ये डिमांड किया और मोहब्बत ने जोश मारा, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। रब के लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। रब के लोग वो हैं जो किसी से नफरत नहीं करते। बात ये हो रही थी उन्हें मुलाजिम बड़े डिफरेंट हैं, और यीशु के मुलाजिम भी बड़े डिफरेंट है। लिखा है जाओ ऐसे करूँगा से सुने कोई नहीं, जो एक थप्पड़ मारे तो दूजा भी उधर कर दो, माफ की तैयारी करो 7 के 70 बार माफ कर दो। नेकी करो तो सबके साथ करो, नेकी करने से पहले किसी का मजहब न पूछो, केड़े मजहब दा तू, केड़े फिरके दा, केड़े मसलब दा। नेकी करो, जो तुम्हें तुमसे मांगे उसको जरूर दो, और जहां तक मुमकिन हो नेकी करो, खासकर अहले ईमान के साथ। ये कलाम में लिखा है। लेकिन नेकी का खुदा ने हमें, अगर हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करें तो लोग कह देंगे कि ये लोगों ने जेड़े बगड़े बखरे ने, लेकिन शर्त यह है कि हम यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ। फिर क्वीन ने जब उसको देखा तो क्या किए कि एक बड़ा जबरदस्त उसने फिक्रा बोला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहती है मैंने जो सुना था वो तो मुझे ऐसा लगता है गोया मुझे आधा बताया गया, अद्धी गल दसी गई ये बारे, जो मैं देखा ये कमाल है। इसीलिए पतरस ने कहा था यीशु के फजल में और इरफान में बढ़ते जाओ। तुसी अजे यीशु को देखा नहीं, उसकी जात को हमने पहचाना नहीं। जितना यीशु को जानते चले जाएंगे मुकाशफात खुलते चले जाएंगे, इंटीमेट होते चले जाएंगे, इंटीमेसी बढ़ती चली जाएगी। यीशु मसीह की शख्सियत के ऐसे राज खुलेंगे हम हैरान रह जाएंगे। हम भी कहेंगे इंजदा में दुनिया से देखा कोई नहीं। उसने कहा था कि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई नहीं। मैं नहीं देखा, बाहर की नजर मारी है तो मैनू नजर कुछ नहीं आया। मैं क्या कहना चाहूँगा पंजाबी में, उसने क्या कहा था तेरे वर्गा और कोई नहीं, जे तू है तू डिफरेंट। मैं भी ये कहूँगा यीशु मसीह के बारे में, तू किसी वर्गा तो किसी वर्गा नहीं, यू आर डिफरेंट, यू आर 100% डिफरेंट। तू किसी वर्गा, तू डिफरेंट,
यू आर यूनिक। जब हम यीशु को देखते हैं, परमेश्वर की जिंदगी से गौर करते हैं, तो हम कहते हैं कि तेरे वर्गा कोई नहीं। मुझे बताइए, आपके दुश्मन सामने खड़े हैं, आपके प्यार करने वाले ने एक दुश्मन का कान काट दिया है तलवार चला के। यीशु मसीह ने क्या कहा? वेल डन। कहते नहीं 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 पतरस, नहीं नहीं करना, मैं तलवार चलाने नहीं आया। अरे भले बंदे, मैं चाहूं तो अभी फरिश्तों के ग्रोह आसमान से उतर सकते हैं। मेरा बाप चाहे तो अभी इनको मार सकता है। मेरे हुक्म के सामने फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं करते। और मैंने ये नहीं किया, कलाम बयान करता है, कान फाड़ के फिर ला देता, फिर जोड़ दिया, हील कर दिया जा। और हमें सिखा दिया कि किसी को मारना नहीं, किसी से सुनने का हक छीनना नहीं, सबके पास काम रहने दो। हो सकता है ये कभी भी तौबा कर ले, सीएम को पहचान ले। शरीर पर लटके थे, सामने मारने वाले हैं, ताने मारते हैं, कभी थके उतर तेन मन जाइए, आज थके उतर तेन मन जाइए। अब हाथ उठते बढ़िया गल्ला करता, तूने मुर्दे जिंदा किए, तूने तूफान को थमा दिया, नीचे उतर। यीशु मसीह नीचे उतर सकते थे कि नहीं उतर सकते? फौरी उतर सकते थे, आसान काम था उतरना, ऊपर रहना तो बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुश्किल चुना, उन्हें पता था अगर मैंने आसान चुन लिया सबको मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, अगर मैं मुश्किल काम चुन लूं सबके लिए आसानियां हो जाएंगी, जिंदगी का दरिया दारी हो जाएगा, इसलिए मुझे उतरना नहीं। और जो बाद में 3 दिन बाद कब्र का मुंह खोल सकता है, मौत की मौत कर सकता है, उसके लिए उस दिन उतरना कुछ मुश्किल था नहीं। ऐसा शख्स हमें दुनिया में नहीं मिलेगा। और जो हम जानते चले जाते हैं, अपनी जिंदगी के पिछले 25 सालों का तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जितना यीशु को जानते चले जाते हैं, यू आर अमेजिंग। रब जी अपनी ज़ात में एक और परत खोलो, लेट मी नो मोर अबाउट यू, आई वांट टू गेट मोर इंटीमेट विद यू, प्लीज लेट मी हैव द इंटीमेसी। रब जी तुसी कितने खूबसूरत हो, तुसी कितने हसीन हो, तुसी कितने प्यारे, आई वांट टू नो मोर अबाउट यू। और मैं कहता हूं कि जब हम आसमान पे जाएंगे और यीशु को देखेंगे तो हम भी सभा की मरकत एक ही गल कर और सानू ते अद्धा भी दसिया गया, यीशु जी तुम्हारी जलालत का ते अंदाजे नहीं कर सकते। कलाम भी बताता है और सब कुछ भी बताता है। और उस कहता है अभी आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, ऊपर जाकर रूबरू देखेंगे, जलाल हम नहीं देख सकते। और ये यकीनन यीशु मसीह उससे भी बड़े हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब वो बड़ी हैरान रह गई और उसने कहा कमाल, यू आर अमेजिंग सुलेमान। फिर वो वहाँ पर रुकी रही, उसकी बातें उसने सुनी और वो हैरान शस्त रह के जो है उसके बाद देखा कि वो अपने घर को वापस लौटी कुछ देर रुक के। लेकिन वो ना सिर्फ वो उस मुलाकात का सारा वक्त को यादें थी लेके गई, बल्कि अपने साथ हिकमत के नए खजाने भी लेके चली गई। जो रिडल्स, जो पहेलियाँ, जो बड़ी और कमाल बातें सुलेमान उसके साथ शेयर की थी, वो सारी साथ लेके चली गई। लेकिन यीशु जो हमारे शेयर करता है वो उनसे भी बड़ा है। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर आपने आज तक यीशु को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जानते, ट्राई टू नो मोर अबाउट हिम। और अगर आप यीशु को जानते हैं, इफ यू नो हिम, एंजॉय कीजिए। मैं समझता हूँ आज के कलाम के बाद हमारा दिल आओ शुक्रगुजारी से भर जाना चाहिए और सदे भर जाना चाहिए, इबादत में और जज्बा पैदा हो जाना चाहिए, इबादत में और फ्रीक्वेंसी पैदा हो जानी चाहिए। जहां हम हफ्ते में 2, 4, 6 इबादत करते हैं, हर रोज इबादत भर जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमारे दरमियान इस वक्त रूहानी तौर पर मौजूद है वो सुलेमान से भी बहुत बड़ा है। मलका जो दखन की मलका थी वो सारी उम्र नहीं भूली होगी सुलेमान के साथ अपनी मुलाकात को। तो हम जो यीशु मसीह को बताना चाहता हूँ, हमें भी उसको भूलना नहीं है, उसकी मोहब्बत पे रोज बढ़ते चले जाना है। अगर आप यीशु को नहीं जानते, उसको पहचानिए, उसके अंदर जिंदगी है, अबदी जिंदगी है और पक्की जिंदगी के अंदर मौजूद है, माफी मौजूद है हमेशा की जिंदगी में। और जो जानते हैं ऑलरेडी, मैं कहूँगा आज के कलाम के वसीला से आइए वापस यीशु से और प्यार करना शुरू करें और सजदे बढ़ जाने चाहिए, इबादत बढ़ जानी चाहिए, यीशु से मेरा प्यार बढ़ जाना चाहिए। और हम यीशु को लेकर, मसीहा को लेकर, जीसस को लेकर, ईसा मसीह की बात को लेकर दुनिया के कोने कोने जाएं। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी यीशु के बारे में सुनेगा वो ये जरूर कहेगा कि जो ये यीशु है ये सुलेमान से भी बड़ा है। आमीन। आइए